Hello students, today we will be discussing GUTSET 2017 paper. The first question, which oxidized product is obtained when benzene diazonium chloride reacts with ethanol? Right? Benzene diazonium chloride की reaction बोल रहे हैं. अगर benzene diazonium chloride की reaction अगर हम देखें ethanol के साथ तो हमारे पास what would be the product obtained? हमारे पास आएगा benzene, acetaldehyde, along with it N2 and HCl is generated. So our correct option for this will be acetaldehyde. Right? Oxidized product of benzene diazonium chloride with ethanol. One of the important reactions. The second question is a factual question. Which amino acid contains a secondary amino group in its structure? ठीक है, अगर अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स कंटेन्स वन अमीनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वन हाइड्रोजन एंड fourth group could be hydrogen, as in case of glycine. If it is an alanine, then it will be CH3 group. If it is lysine, then it will be CH2 whole 4 group. All these contains primary amino group. Only proline is the one which contains a secondary amino group. So correct answer would be A. Moving on to the third question, which of the following protein is present in silk? सिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क, वूल, हेयर, all of them contains keratin. All right, again a factual question. Fourth one, which of the following polymer is condensation as well as cross-linked polymer? फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है कौन कंडेंसेशन और क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन दोनों शो करता है. तो आप from the option only you can make out bakelite is the one which has condensation as well as cross linking. So correct answer would be A. Moving on to the fifth question, which polymer is used in preparation of hose pipes? Right, use based question है. All right, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो टेफ्लॉन आपको पता है, it is used for making non-stick cookware. Polystyrene, it is a fiber making substance. So neoprene would be the correct answer, which is used for making hose pipes. Moving on to the sixth question, from the following substance which carbohydrate has maximum sweetness? ठीक है, सारे artificial sweeteners हैं जिसमें से एलिटेम मोस्ट maximum sweetness possess करता है. All right, it is 2000 times more sweeter. So correct answer would be D. सेवेंथ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ड्रग विरोनल किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो विरोनल इज अ ट्रैंक्विलाइजर. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन. In which of the following pair of complexes the experimental magnetic moment and geometric shapes are same? ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूछा है कि किसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट और ज्योमेट्रिकल शेप सेम होंगे. तो अगर हम एनालाइज करें तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा. निकल के ही कॉम्प्लेक्स हैं दोनों. निकल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 3d8 4s2. यहाँ पर भी निकल +2 स्टेट में है, यहाँ पर भी +2 स्टेट में है, दोनों ही जगह +2 स्टेट में है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे. इट विल बी 3d8 cyanide and ammonia being strong ligand, they will induce pairing, so both of them would be diamagnetic and square planar. सो इनके अंदर दोनों ही के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम है और ज्योमेट्रिक शेप भी सेम है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री. ऑलराइट, let's move on to the ninth question. A crystalline solid is made up of X and Y atoms. X atom possesses a CCP structure. X atoms CCP arrangement के अंदर हैं. CCP arrangement मतलब 6 faces. Faces का contribution 1/2 and corners 8 corners. Each one is contributing 1/8. So total X should be 4. Now Y atoms are arranged in tetrahedral voids. अगर X यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होंगे. राइट, लेकिन क्वेश्चन सेज कि वन ऑफ द डायगोनल फ्रॉम वन ऑफ द साइड इज रिमूव्ड. अगर एक डायगोनल रिमूव करते हैं तो ऑन रिमूविंग वन डायगोनल, ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रिमूव होंगे क्योंकि एवरी डायगोनल कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 2 कॉर्नर्स वुड बी रिमूव्ड. ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 2 कॉर्नर्स वुड बी रिमूव्ड. ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो हमारे पास y का नंबर क्या आ गया? टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 रिमूव हो गए तो हमारे पास y होने चाहिए थे 8, लेकिन अब हमारे पास y कितने रिड्यूस होकर रह गए? 6.
दूसरी तरफ 2 कॉर्नर्स रिमूव हुए, तो अगर हम x का सिनेरियो देखें तो x के अंदर 8 कॉर्नर्स नहीं है. नाउ इन दिस सिचुएशन x वुड हैव 6 into 1/2, that is total 3 atoms from the faces, and this will be 6/8. तो x should be 3 plus 6/8. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 4 3 4 सॉरी 3 and 4, दैट इज 15/4 हो गया हमारे पास x, और y कितना हो गया 6. अगर x और y का रेशो देखेंगे हम, तो x और y का अगर हम रेशो देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 15/4 एंड 6, दैट इज 15:24. अगर क्लैरिटी से देखेंगे तो x वुड बी 15:24. x एंड y का रेशो आ गया 15:24. सिंप्लीफाइड रेशियो 5:8. x5 y8 should be the formula. x5 y8 should be the correct formula. None of the option is given here, so correct answer should be x5 y8, जो कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं प्रोवाइडेड है हमारे पास. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट वन, इन विच क्रिस्टल सिस्टम द लेंथ ऑफ ईच एज, दैट इज एज लेंथ इज सेम. अगर हम देखें तो रोम्बोहेड्रल के अंदर सारी लेंथ्स, रोम्बोहेड्रल has all the edge lengths equal, that is A is equal to B is equal to C. और rhombohedral के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है हमारे पास, HGS. Moving on to the 11th question. The depression in freezing point of 0.01 molar aqueous solution of KX FeCN6 is 0.0744 K. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है. देन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है. ये भी इंफॉर्मेशन है कि सोल्यूट इज अंडरगोइंग कंप्लीट डिसोसिएशन. करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, और अगर आपको करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होता है तो आई आपको फाइंड करना है, दैट इज वेंटॉफ फैक्टर. फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू मोलालिटी. डेल्टा TF की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज दिस 0.0744. आई इज योर क्वेश्चन. 1.86 Kelvin kilograms per mole, that is freezing molar depression constant आपको दिया हुआ है. मोलालिटी आपको दी हुई है 0.01. आई की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4, यानी टोटल 4 आयंस बनना चाहिए, और 4 आयंस हमारे पास किस ऑप्शन के अंदर बनेंगे, बी ऑप्शन के अंदर. 3 पोटेशियम आयन एंड 1 FeCN6, 3 नेगेटिव आयन. सो करेक्ट आंसर वुड बी बी. Moving on to the next question. At a certain temperature 1.6% solution of unknown compound. दो solutions दिए हुए हैं, एक हमारे पास unknown compound है जिसका 1.6% solution है, दूसरा हमारे पास यूरिया दिया हुआ है, यूरिया is 2.5%. both of them are isotonic in nature. दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट भी सेम है, उसकी डेंसिटी भी सेम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी सेम दी हुई है. आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है अननोन सब्सटेंस का. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया. कॉन्सेंट्रेशन इज मोल divided by volume, moles of unknown substance upon volume, moles of urea upon volume. वॉल्यूम सेम है हमारे पास, सेम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सेम डेंसिटी, तो V1 विल बी इक्वल टू V2. ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स के बजाय आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला, that is weight of unknown substance upon molecular weight of unknown substance will be equal to weight of urea divided by weight of molecular weight of urea, right? अननोन सब्सटेंस का वेट आपको फाइंड करना है. आप वैल्यू वेट आपको दिया हुआ है अननोन सब्सटेंस का 1.6. अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 1.6 अपॉन मोलर मास विल बी इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 60. इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा बी, दैट इज 40. Moving on to the next question. Which of the following aqueous solution will have the boiling point of 102.2 degree Celsius? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. अब आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट वेंटॉफ फैक्टर, दैट इज आई की वैल्यू फाइंड करना है. फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू आई KB इंटू मोलालिटी, दैट वुड बी द फॉर्मूला. ऑलराइट, आपको दिया हुआ है विल हैव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, तो डेल्टा TB की वैल्यू आप निकाल सकते हो. डेल्टा TB विल बी 102.2 माइनस 100, दैट इज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू आई. देन
आपके पास केवी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2.2, ऑल राइट। एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सारे जो ऑप्शंस में है क्वेश्चन के अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ही प्रोवाइडेड है, तो 1 हो गया। आई सॉल्व करेंगे तो आई आपके पास आता है 1, और वेंट ऑफ फैक्टर 1 किसका मिलेगा हमें, डी ऑप्शन में ग्लूकोज का। NaCl का आई फैक्टर वेंट ऑफ फैक्टर 2 होता है, दो ऑप्शंस में आई फैक्टर 2 होगा। और एसिटिक एसिड इट विल बी बिटवीन 1 and 2, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। Moving on to the 14th question, graph of square root of concentration versus molar in dilution, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ग्राफ पूछा है, लैम्डा एम के लिए, ठीक है। विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, strong electrolytes के लिए it is always the graph is straight line. HCN is the only weak electrolyte given, so it will not be a straight line for HCN as it is a weak acid. All right, so root C versus lambda m का graph will be not a straight line for HCN. Next, moving on to the next question, which option is incorrect for working cell? This is a concentration cell, और अगर इस concentration cell के अंदर equation देखें तो chloride ions हैं, they will get converted into chlorine gas plus 2 electrons. इसकी concentration अगर आप देखोगे तो C1 है, ये C2 है, E cell निकालना होगा तो हमारे पास -0.0591 बाई N की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, अगर 1 से लेंगे तो उतनी होगी। हमने यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल बनाया है तो N/2 लॉग कैलकुलेट करेंगे तो C2 बाय C1 होल स्क्वायर, ठीक है। ई सेल इट विल बी 0.0591 बाय 2 लॉग C1 बाय C2। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो C2 बाय C1 है, पॉजिटिव वैल्यू है तो C1 बाय C2। यानी ई सेल पॉजिटिव लाना है तो फीसिबिलिटी होना चाहिए, फीसिबिलिटी पॉजिटिव वैल्यू पर आएगी, तो इसमें इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो व्हाट वुड बी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, C2 इज ग्रेटर देन C1, क्योंकि आपको पूछा है वर्किंग सेल के लिए, तो वर्किंग सेल के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव C1 ग्रेटर देन C2 होगा तभी आएगा, अदरवाइज इट वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू। pH of solution dash during the electrolysis of dilute aqueous solution of copper sulfate, जब भी कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है तो pH वुड डिक्रीज, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, आप सबको पता है कॉन्सेंट्रेशन या बेनिफेक्शन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, वॉशिंग हम ये सब यूज करते हैं, ओनली लिक्विडेशन इज द मेथड विच इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का ओर, कैलामाइन जिंक का ओर है, मैलेकाइट, मैग्नेटाइट एंड साइडराइट बोथ आर ores of iron. Malachite is the only ore which is of copper, that is copper carbonate, basic copper carbonate we can say, it is basic copper carbonate, so correct option would be D। 19th one, a very good question, how many grams of oxidizing agent gets reduced, ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स में ही आपको समझने के लिए मिल जाएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेट reduced in the reaction of 65.4 gram of zinc with concentrated nitric acid. नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन आप लिखते हैं जिंक और नाइट्रिक एसिड की तो आपके पास आता है जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी, और जिंक नाइट्रेट के साथ साथ आपको क्या चीज़ की फॉर्मेशन होगी, NO2 बनेगा, ऑल राइट। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ टोटल 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहे हैं, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बनता है तो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन हो रही है दैट इज रिड्यूस्ड पार्ट। तो टोटल कितने मोल्स रिड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, हम 4 मोल नाइट्रिक एसिड के ले रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 ही मोल रिड्यूस हो रहे हैं, तो हमारे पास मास कितना आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, 1 मोल नाइट्रिक एसिड का मास होता है 63 ग्राम्स, 2 मोल का मास हो जाएगा हमारे पास 126, सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। Moving on to the next one, which of the following acids the maximum number of hydrogen atoms are joined directly with phosphorus, this is phosphenic acid,
ऑलराइट, देयर वाज अ करेक्शन इन दिस क्वेश्चन. फॉस्फोरिक एसिड, अगर फॉस्फोरिक एसिड के अंदर देखें तो कोई डायरेक्ट पीएच बॉन्ड नहीं है. फॉस्फोरस के अंदर 1 होंगे. अगर फॉस्फेनिक के अंदर देखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्ट पीएच बॉन्ड्स होते हैं. दैट इज phosphenic acid which has 2 phosphorus hydrogen bonds. All right, next one, the reaction of this is tertiary butyl compound. ठीक है, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. अगर इसकी रिएक्शन करवाना हो तो इट विल बी इजी विथ विच रिएजेंट. दिस इज अ टर्शरी ग्रुप. अगर ये टर्शरी ग्रुप है, ठीक है, अल्कोक्साइड है एक तरह से, जिसके अंदर टर्शरी ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल पार्ट, तो विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं. हेलाइड प्रेफरेबली शुड बी प्राइमरी वन. इट शुड बी अ प्राइमरी हेलाइड. और अगर आप ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट वन इज एन अराइल हेलाइड, थर्ड वन इज अ टर्शरी वन, सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी वन. All right, only D is the correct option, which is involving ethyl bromide, which is a primary halide. विलियमसन सिंथेसिस के अंदर एसेंटो मैकेनिज्म चलता है. अगर अल्कोऑक्साइड टर्शरी है तो हेलाइड शुड बी प्राइमरी. सो करेक्ट आंसर शुड बी डी. 22 क्वेश्चन पे जाएं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक. ठीक है, एनेस्थेटिक की तरह यूज कौन सा होगा? तो एनेस्थेटिक की तरह क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ा है यूजेस के अंदर. क्लोरोबेंजीन एंड सॉरी, हमारे पास एनेस्थेटिक की तरह यूज करना है तो हमारे पास क्लोरल एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप करोगे तो आपके पास क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन होगा विच इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक. तो chloral is CeCl3 CHO. If it is treated with calcium hydroxide, it will result in formation of CHCl3, which is a very good antiseptic chloroform that can be used as an antiseptic. All right, so correct answer should be B. 23rd question, which of the following compound gives only one monochlorinated product on its chlorination in presence of sunlight? ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड का. जिस किसी भी कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही तरह के हाइड्रोजन होंगे वो एक ही तरह का मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा. अगर नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हो तो इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यू कैन सी बोथ दीज आर प्राइमरी एंड दीज आर सेकेंडरी. आइसोपेंटेन की बात करें तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो जाएगा. ऑल राइट, it will give you how many types of products? 4 types of product. One from here, these are primary. Second one from here, which is 3 degree. Third one from here, which is 2 degree, and this primary is different from the other two, so total 4 product आएंगे. Neopentane, it is containing a quaternary carbon atom. सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर सारे हाइड्रोजन एक ही तरह के हैं, so it will give you 1 type of product. And pentane will give you 3 types of products, so correct answer would be neopentane. Which products are obtained when phenyl ethanoate reacts in presence of anhydrous AlCl3? ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट? तो इट इज़ अ फेमस फ्राइज रीअरेंजमेंट. फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर आप इस तरह का रिएक्शन देखेंगे. फिनाइल एथेनोएट विल बी रिएक्टिंग. फिनाइल एथेनोएट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट विल बी this group. If it is undergoing isomerization in presence of anhydrous AlCl3, then you will get these ortho and para products. All right, para hydroxyacetophenone and ortho hydroxyacetophenone are the products. तो आपके पास ये आप दोनों प्रोडक्ट आएंगे, दैट इज एसिटोफिनोन प्रोडक्ट. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन. Fry's rearrangement. 25th question, how many gram of ethanol is required in reaction with sodium metal in order to give 560 ml of hydrogen gas at STP? तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए आपको इथेनॉल और सोडियम की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. You will get C2H5ONA, sodium ethoxide, and half mole of hydrogen is being obtained. All right, तो अगर आप देखें 46 ग्राम अगर आप इथेनॉल ले रहे हैं तो हाउ मच हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड? हाफ मोल. हाफ मोल इज 11200 ml. आपको कितना ml हाइड्रोजन चाहिए?
560. So amount of ethanol used will be 46 into 560 divided by 11200 ml. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर डी आता है, दैट इज 2.3 grams. All right. 26th question. The IUPAC name of product obtained by oxidation of phenol with the help of chromic acid. फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर आप करते हैं क्रोमिक एसिड H2CrO4 के साथ तो आपके पास फिनॉल है. फिनॉल की रिएक्शन अगर आप क्रोमिक एसिड के साथ कर रहे हो तो क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर फिनॉल विल चेंज इनटू दिस कंपाउंड दैट इज अ क्विनोन. ऑलराइट. और अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो इट इज साइक्लोहेक्सा 2,5-diene-1,4-one. That is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. All right. So it will be cyclohexa, that you can obviously see 2,5-diene, and there are two ketonic groups. So correct option would be cyclohexa 2,5-diene-1,4-dione, which is D answer. All right, 2,5-diene-1,4-dione. Let's move on to 27th question. Question says that 298 Kelvin forward process के लिए activation energy आपको दी हुई है 15 kilojoules. Enthalpy of reaction is exothermic process है 20 kilojoules. Backward reaction के लिए enthalpy of reaction बोला है तो backward total enthalpy of reaction बैकवर्ड प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बोला है. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड प्रोसेस. दिस इज गिवन टू यू, दैट इज -20. फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए 15. तो आपको बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, दैट इज योर क्वेश्चन. तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा +35 kilojoules. 28th क्वेश्चन सेज हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. टी हाफ आपको गिवन है, दैट इज 15 minutes. How many grams of radioactive substance is decayed? Decayed amount पूछ रहे हैं अगर हम 50 ग्राम से स्टार्ट करते हैं in 1 hour. तो टोटल टाइम आपके पास है 1 hour, that is 60 minutes. All right. T half आपको गिवन है, that is 15 minutes. तो टोटल हाफ लाइफ्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने आ गए आपके पास? आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ गए 4. ठीक है. Then amount left after a certain number of half lives is initial amount divided by 2 to the power n. 2 to the power n. n is the number of half lives. half life का नंबर आपके पास पता ही है 4. इनिशियल अमाउंट आप कितने से शुरू कर रहे हैं? 50 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3.125 ग्राम्स आता है. अगर इतना अमाउंट बचा, मतलब अगर 50 में से 3.125 माइनस करेंगे तो आपके पास डिकेड अमाउंट विल बी 46.875. 29th क्वेश्चन सेज दैट रेट कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है 1.75 into 10 to the power 2 लीटर स्क्वायर मोल्स टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स. आपको ये चीज दी हुई है. हाफ लाइफ फाइंड करना है तो टी हाफ is directly related to initial concentration to the power 1 minus n. ठीक है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? द वैल्यू कम्स आउट टू बी A0 to the power -2. और जैसे कि यहाँ पर R0 दिया है, A0 की जगह R0 भी यूज कर सकते हैं. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा R0 to the power -2. यूनिट से आप मेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह का रिएक्शन है. यूनिट विल गिव यू एन आइडिया कि इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो 1 - 3 करेंगे तो -2 आ गया आंसर. ऑलराइट. सो R0 to the power -2. Then 30th question, the values of slope and intercept are given. स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है. स्लोप की वैल्यू दैट इज आपको पता है log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p. y इज इक्वल टू mx plus c. So this will be intercept, this will be slope, that is 1/n की वैल्यू आपके पास है 0.5. log k की वैल्यू आपके पास गिवन है, that is 0.4771. तो k की वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो k comes out to be 3. एंटी लॉग लेंगे 0.4771 का तो 3 आता है. आपके पास k है, आपके पास 1/n है. तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्रेशर भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. तो x/m इज इक्वल टू
3 इंटू 4⁵ 0.5 सॉल्व करते हैं तो 6 आता है. सो करेक्ट आंसर वुड बी बी. 31st question. In which emulsion colored droplets are obtained when oil soluble dye is added? It is a dye test. Alright. और dye test के अंदर oil soluble dye जब भी कभी हम किसी emulsion के अंदर add करेंगे तो oil in water type of emulsion will give you color. So what milk will be the example. Oil in water type. Then which of the following is correct order for theoretical magnetic moment? क्रोमियम मैंगनीज और आयरन आपको प्रोवाइडेड है. क्रोमियम +3 स्टेट के अंदर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1. +3 के अंदर चले गए तो 3d3 यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. मैंगनीज के अंदर +3 स्टेट दी हुई है. मैंगनीज के अंदर आपके पास +2 स्टेट है. मैंगनीज का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2. +2 के अंदर आपके पास कितना आ जाएगा? 3d5 दैट इज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. आयरन Fe3 पॉजिटिव 3d6 4s2 +3 स्टेट में है तो 3d5 हो गया. यानी यहाँ पर भी आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास किसके अंदर है? क्रोमियम के अंदर. मैंगनीज और आयरन के अंदर बराबर बराबर है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. Moving on to the 33rd question. Incorrect with reference to inner transition. यानी लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बारे में इनकरेक्ट पूछा है. ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स बेसिक है, आपको पता ही है. सेकेंड, पीएम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग टू एक्टिनॉइड सीरीज. नो. पीएम प्रोमेथियम इट इज अ लैंथेनॉइड नॉट एन एक्टिनॉइड. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वुड बी बी. 34th question. Which of the following complex ion absorbs the light of minimum wavelength? Minimum wavelength means maximum energy. अगर हम E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा के हिसाब से देखें तो अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी. एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, इसीलिए वहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है? वाटर, फ्लोराइड और अमोनिया में. वाटर, फ्लोराइड, अमोनिया और साइनाइड में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइनाइड है, इसलिए इसके अंदर ही मिनिमम वेवलेंथ आएगी. 35th question. Which of the following pair of complex whose aqueous solution gives pale yellow and white precipitate? pale yellow precipitate, white precipitate, yellow precipitate halogens के अंदर मिलता है. Iodides gives yellow, bromides gives pale yellow, chlorides gives white precipitate with silver nitrate. So हमारे पास कहाँ कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसमें ब्रोमाइड और क्लोराइड्स अवेलेबल है एज काउंटर आयंस? तो सी ऑप्शन हो गया, जहाँ पर ब्रोमाइड का पेल येलो आएगा और क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा विद सिल्वर नाइट्रेट. 36th question. Which of the following is a disproportionation redox reaction? ऑलराइट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं. हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. अगर एसिटिक एसिड के 2 मोल्स लेंगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपके पास एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास CH3CO होल ट्वाइस O बनना चाहिए. Sp2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ऑन हीटिंग इट विल एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 मोल्स. अगर डाइल्यूट NaOH के साथ अगर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन देखें तो अल्डोल कंडेंसेशन हो गया. अल्डोल इज नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. मैग्नीशियम मर्क्यूरी की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करेंगे तो भी हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं आता. हाँ, कैनिजारो that is the D option 50% NaOH that is concentrated NaOH की प्रेजेंस में अगर फॉर्मेल्डिहाइड करेगा रिएक्शन तो इट विल अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन लीडिंग टू अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड. ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. 37th question. Which compound does not give Benedict's test? ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट फेलिंग टेस्ट आपको पता है. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट. तो अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो सिर्फ एक ही एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो यहाँ ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा. 38th question. What is the main product obtained by cross aldol condensation of benzene carbaldehyde and 1-phenyl ethane 1-one? ठीक है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हमारे पास. तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप बेंजीन कार्बाल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड इज नथिंग बट इट इज बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड और 1-phenyl ethane 1-one की बात कर रहे हैं, दैट इज एसिटोफिनोन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं.
तो आईयूपैक नेम के हिसाब से उन्होंने नेमिंग दी है। अगर आप इनका क्रॉस टेल्डॉल प्रोडक्ट देखें तो व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस टेल्डॉल कंडेंसेशन, तो अगर इन दोनों का आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। आपके पास ये कंपाउंड आना चाहिए विच इज अ क्रॉस टेल्डॉल प्रोडक्ट ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। Moving on to the 39th question. Which of the following reaction gives tertiary sulfonamide with benzene sulfonyl chloride? टेस्ट फॉर अमीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और टर्शरी सल्फोनाइड की बात कर रहे हैं। तो टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स टर्शरी सल्फोनामाइड, तो और है क्या, दैट इज हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। प्राइमरी सेकेंडरी देते हैं, टर्शरी नहीं देते हैं। तो हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो सेकेंडरी अमीन किसके अंदर बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन। तो अगर फर्स्ट के अंदर देखें तो अनिलीन की फॉर्मेशन होती है, टर्शरी सल्फोनामाइड बन रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन हमारे पास आइसोसाइनेट की रिडक्शन से आएगा, इसलिए CH3 CH2 अगर रिडक्शन करेंगे तो NH and CH3 सेकेंडरी अमीन विल बी ऑब्टेन इन दिस केस। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर टर्शरी सल्फोनामाइड मिलेगा हमको। देन लास्ट क्वेश्चन दैट इज द 40th वन विच इज द इम्प्रॉपर ऑर्डर फॉर अमीन कंपाउंड्स। बेसिसिटी का ऑर्डर बोला इन एक्वस मीडियम, करेक्ट है, 2 डिग्री देन प्राइमरी देन टर्शरी, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। अगर एक्वस मीडियम में है तो 2 1 3 का ऑर्डर होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारे पास आइसोमरिक अमीन्स के लिए बोल रहे हैं। तो आइसोमरिक अमीन्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री होना चाहिए। यहाँ ऑर्डर 3 2 1 का दिया है, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेस इज करेक्ट, 3 डिग्री मोस्ट बेसिक देन 2 डिग्री देन प्राइमरी। All right, so incorrect या improper for amine compounds would be B. All right, I hope सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए हैं इस गुड सेट के पेपर के अंदर, और बहुत कुछ पिछले साल के पेपर का रिपीटेशन भी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस नाइसली।